व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So this video is regarding the new motovlog setup that I have switched to recently from, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि earlier I used to vlog using my Insta360. It was an X2 model. तो उस पर मैंने माइक अडाप्टर, माइक, वो सब सेटअप करके फुल मोटोव्लॉग सेटअप बना के रखा हुआ था. सो हाल ही में I bought the DJI Osmo Action 5 Pro. So I had been saving a lot for this camera. I could have gone for the GoPro Hero 910. वो सस्ते में मिल जा रहे थे, but I was like नहीं यार, एक लेंगे तो अच्छे से लेंगे. So I wanted the best in the market. So that's why I got one, because this is arguably the best action camera money can buy you right now. Now, coming to the specifications of this camera, this comes with a CMOS 1x1.3 sensor, which is a lot bigger than the 1x1.8 that GoPro offers. तो low light imaging बहुत अच्छी है इसमें. उसके अलावा the f-stop number is f2.8, so फेयर अमाउंट ऑफ डेप्थ कैप्चर कर सकता है, डेप्थ सेपरेट कर सकता है ये लेंस. एंड it has a battery capacity of 1950 mAh and it's rated the highest lasting camera, action camera in its class. मतलब जबकि GoPro वगैरह आपको 40 minutes, 50 minutes, 1 hour तक की बैकअप देते हैं, this baby can record at 4K 30 FPS for around 3 hours, which is insane. 3 घंटा व्लॉग क्या करोगे भाई? तो that's pretty nice. Apart from that, it has pretty big OLED touch screens because it has 2 touch screens, एक आगे एक पीछे. So and that too they are OLED, not the LCD ones that you get with all the other action cameras. Over it's plenty bright, like it's 800 nits max brightness. तो bright भी है, OLED भी है, and because it's an OLED you get an always on screen feature. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, the orange light that is blinking in the camera, it's inside the screen, it's not actual light. तो OLED में वो कर सकते हो without sacrificing on your battery. तो that's pretty dope. उसके अलावा if you talk about the still photographs that you can take with this camera, 40 megapixel is the max resolution you can take photos in. So that's pretty wild. 40 megapixel बहुत अच्छा होता है. And जैसे कि मेरा iPhone, it's 48 megapixel and this camera is 40 megapixel, that too it's ultra wide. तो if I talk about the difference between the Insta360 that I was using and the DJI that I'm using now, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लाइक आप मेरी जो Insta360 थी, it could record in 5.7K, right, at 60 FPS, that too. But the problem is the 5.7K covered the entire 360 degree. It's not कि the FOV आपको 5.7K मिलेगा. You had to crop out the picture, which reduced the resolution to less than 4K. It was around 2K, little more than 2K अगर आप बस सामने वाला कैप्चर करोगे. But this, although this has a 155 degree angle, wide angle, but ये जो 4K रिकॉर्ड करता है, it's 4K 30 with that exact FOV. तो आपको फुल 4K मिलती है. हाँ, अभी अगर Insta360 में वापस जाएं, 5.7K में रिकॉर्ड करता था, बट वो काटना पड़ता था. तो सो एक्चुअली में आपको 2K से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बेटर मिलता था. तो उसके अलावा द एक्सपोर्टेड फाइल इन द Insta360
was in LRB फॉर्मेट. LRB फॉर्मेट आपके कोई भी ये पे नहीं चलेगा एक्सेप्ट योर Insta360 स्टूडियो ऐप इन योर PC. उसमें चलेगा. तो आपको हर वीडियो शूट करने के बाद यू हैव टू टेक आउट द मेमोरी कार्ड, पुट इट इनटू द ऐप, रीफ्रेम द एंटायर व्लॉग. आपने जो भी व्लॉग किया है पूरा रीफ्रेम करो, एक एक फ्रेम जहाँ पे आपको ये करना है. व्हेन इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बट थोड़ा कम्बरसम भी हो जाता है यार. तो वो करने के बाद जाके यू कैन एक्सपोर्ट इट इनटू एन MP4 फाइल. उसके बाद आप कलर ग्रेडिंग करो, वो करो, ये करो, वो सब उसके बाद. लेकिन यूजेबल फुटेज निकालना was itself a struggle. So that was one of the major reasons which pushed me to get a FOB camera instead of a 360 camera. Now coming to the differences in the quality of the footage that is being recorded in both the cameras. अगर मैं compare करूँ, so this is much better than what Insta360 was. अगर मैं नाइट टाइम फुटेज देखूँ या मैं डे टाइम फुटेज देखूँ, all of them much better. DJI is much better. So उसके अलावा there is one more thing that I love about this particular action camera is that it supports log files as well as it supports 10-bit colors. So the major difference कलर प्रोफाइलिंग में ये होता है कि नॉर्मली कैमराज जो होते हैं वो 8-bit कलर्स कैप्चर करते हैं. एंड व्हेन यू कंपेयर 8-bit कलर्स एंड 10-bit कलर्स यू विल नो देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस. तो जितने प्रोफेशनल ग्रेड कैमराज होते हैं वो 10-bit में रिकॉर्ड करते हैं. इट कैप्चर्स मोर अमाउंट ऑफ कलर्स व्हेन यू कंपेयर टू 8-bit. एंड इसके साथ इसमें लॉग में भी रिकॉर्ड कर सकते हो. सो जिन लोगों को लॉग पता नहीं है, लॉग एक ऐसा फॉर्मेट है वीडियो का, जैसे फॉर्मेट आप जानते हो HEIC जानते होगे, MP4 जानते होगे. दीज आर मोस्ट कॉमन फॉर्मेट्स, वीडियो फॉर्मेट्स. बट लॉग इज़ अ फॉर्मेट विच रिटेन्स. लॉग इज़ मतलब लॉग फाइल को, लॉग वीडियो फाइल को जब आप देखोगे इट विल लुक वेरी फ्लैट. तो आपको लगेगा कुछ कलर्स है ही नहीं. द थिंग इज इट कैप्चर्स ऑल द कलर्स, लेकिन वो एक फ्लैट इमेज प्रोफाइल में रखता है उसको. तो उसमें क्या होता है ना, जब आप कलर ग्रेडिंग करते हो पोस्ट प्रोसेसिंग, तो दैट उसमें वो उभर के आता है. एंड आप जो भी प्रोफाइलिंग चाहो उसमें कर सकते हो. इट्स लाइक कि मुझे विविड ज़्यादा दिखाना है, मैं विविड दिखा सकता हूँ. मुझे कम विविड दिखाना है, मैं वो भी कर सकता हूँ. तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या करना चाहता हूँ. जो आप अगर लॉग नहीं कर रहे हो, लॉग फाइल में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तब नहीं कर सकते हो वो चीज़. तो वो फ्लैटर दिखता है आपको जब कलर ग्रेडेड नहीं होता है. बट वंस इट्स कलर ग्रेडेड, इट्स द बेस्ट वीडियो क्वालिटी यू विल एवर फाइंड. कलर, द बेस्ट कलर्स, द बेस्ट डायनामिक रेंज, सब बेस्ट. तो that is also a huge thing that is going for this camera. ये 8-bit रिकॉर्डिंग 8-bit कलर्स में भी रिकॉर्ड करता है. इट्स नॉट लाइक कि 8-bit में नहीं करता है. 8-bit में भी करता है, 10-bit में भी करता है. एंड मैक्सिमम रिजोल्यूशन इट रिकॉर्ड्स इज एट 4K. एंड 4K में ये 120-240 FPS भी कर लेता है. 120 FPS आई गेस, नॉट 240 FPS. सो 4K 120 FPS ही आराम से कर लेता है, विच आई फील इज़ मोर देन सफिशेंट. यार आप 80 इंच के टीवी में भी 4K से ज़्यादा तो देखते नहीं हो. तो ये मार्केटिंग गिमिक में जैसे बोलते हैं 8K रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, यू नीड दोज थिंग्स एक्चुअली? नो, आई डोंट थिंक सो. तो फॉर मी इट्स लाइक मतलब मैं जो व्लॉग्स रिकॉर्ड करता हूँ इट्स इन 4K 30 FPS. तो फॉर मी 4K 30 FPS इज़ फाइन, मेरा चल जाता है. इफ़ आई वांट आई कैन डू इट इन 4K 60 ऑल्सो, बट आई डोंट नीड इट. तो 4K 30 मेरा चल जाता है वही. एंड 4K इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है. आई परचेज द स्टैंडर्ड कॉम्बो ऑफ एक्शन 5. तो उसके साथ ऑल्दो इट सपोर्ट्स Type-C माइक्स, डायरेक्टली वायर्ड माइक्स. आई एम एक्चुअली, मुझे वायरलेस माइक्स पसंद नहीं है, बिकॉज उनमें वही है प्रॉब्लम है कि भाई आप कैमरा का बैटरी तो आपको चार्ज करना ही है. यू आर एडिंग वन मोर वायरलेस थिंग विच रन्स ऑन बैटरी, एंड उसका चार्जिंग का टेंशन भी आपको लेना है. तो आई वॉज लाइक नो थैंक्स. एक कैमरा तो चार्ज करने का टेंशन ले ही रहा हूँ, अभी बैटरी, अभी माइक भी चार्ज करने का उसका टेंशन भी मैं लूँ, वो मेरे से ना हो पाएगा. तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर द वायर्ड माइक्स. नाउ वायर्ड माइक्स में ऑल्दो इट सपोर्ट्स Type-C माइक्स डायरेक्टली, बट
टाइप सी स्टीरियो टाइप माइक्स मुझे मिल नहीं रहे थे अच्छे क्वालिटी के, बट आई हैड दिस रोड का लेवलियर माइक जो TRS पोर्ट के साथ आता है। तो आई वॉज यूजिंग दैट विथ माई Insta360 के अडाप्टर में लगा के। तो इट इज़ अ TRS टाइप माइक, मतलब इसका पोर्ट जो है, इसका जो प्लग है वो TRS टाइप है, नॉट TRRS। सो TRS इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर गुड क्वालिटी माइक्स, मतलब फ़ोन्स में यूज़ ना करके एक्चुअल किसी कैमरा वगैरह एक्सटर्नल माइक्स में यूज़ करता है टाइम TRS वाले माइक्स यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ देयर। अभी इफ़ आई हैड टू यूज़ दिस माइक देन आई हैड टू बाय अ कन्वर्टर। नाउ कन्वर्टर में दिक्कत ये होता है कि आप तो बोलोगे कि 200 रुपये में OnePlus का कन्वर्टर मिल जाता है 3.5mm जैक से टाइप सी में कन्वर्ट करने के लिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दोज कन्वर्टर्स आर TRRS टू टाइप सी कन्वर्टर्स। तो अभी जब आप स्टीरियो माइक्स यूज़ करते हो, स्टीरियो माइक्स आर टिपिकली TRS नॉट TRSS। तो अगर आप उसको यूज़ करोगे वो चलेगा नहीं, ठीक है। एंड इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर चल भी जाता है ना, इट विल नॉट कैप्चर द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द साउंड, तो आपके हाईज लोज अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा। तो व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ TRS माइक यू नीड अ TRS टू टाइप सी कन्वर्टर। तो वो आता है बोया का। सो बोया, एनी पर्सन हु इज़ जो थोड़ा भी ब्लॉगिंग कुछ करता है उसको बोया के बारे में तो पता ही होगा। सो बोया इज़ अ नाइस ब्रांड विच मेक्स अकोस्टिक्स एंड माइक्स। तो बोया का B4 कनेक्टर मैंने लिया था विच कॉस्टेड मी अराउंड 1700 और 1800 रुपीज़। तो वही है, वही डिफरेंस ये करता है आपको। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो इट्स विद द सेम रोड का लेवलियर माइक विच इज़ कनेक्टेड थ्रू द बोया K4 कनेक्टर इनटू माय कैमरा। सो अभी ये जो कन्वर्टर है इसमें ये इतना महंगा क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स ADC। नाउ अभी ADC क्या है? ADC है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आपने हमेशा DAC सुना होगा। DAC इज़ व्हाट? DAC इज़ आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। लेकिन बिकॉज हमारे माइक्स में जो स्टीरियो जाता है, हम जो बात करते हैं, दोज आर एनालॉग सिग्नल्स, दोज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स एंड देन पुश्ड इनटू द माइक। तो हम लोगों को ADC चाहिए होता है। तो ये जो कन्वर्टर है इसमें ADC होता है, तो उसके लिए महंगा होता है एंड इट सपोर्ट्स स्टीरियो साउंड ऑल्सो। अभी अगर आप वो 200-300 रुपये वाला कनेक्टर ले लोगे तब भी आपको कैमरा के सेटिंग्स में दिखाएगा कि इट्स रिकॉर्डिंग स्टीरियो, बट वो स्टीरियो नहीं मोनो में रिकॉर्ड करता है, विच इज़ नॉट दैट गुड। अगर आप साउंड देखने जाओगे इतना अच्छा साउंड नहीं आएगा। तो इसीलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एनीवन गोइंग फॉर दिस कैमरा टू थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगाओ एंड गेट द गुड कन्वर्टर। ADC वाला कन्वर्टर अच्छा सा मंगाओ। नॉट डोंट यूज दोज 200 रुपीज़ वाला कन्वर्टर्स, दोज आर नॉट गुड। तो या मेरा कैमरा माइक से कनेक्टेड है थ्रू दैट कन्वर्टर and it's mounted to my helmet on the chin mount using the Blue Armor chin mount. So this is my whole motovlog setup and मैं सारे footages ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आपका लॉग में रिकॉर्ड करता हूँ 10-bit लॉग में, 10-bit कलर्स इन द लॉग प्रोफाइल। हाँ, अभी लॉग का डिफरेंस ये है कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो दैट इज़ कलर ग्रेडेड एंड वो लॉग में शूट हुआ था। तो यू कैन सी द डिफरेंस इन माई पुराने रात वाले वीडियोज़, नाइट वीडियोज़ एंड अभी के नाइट वीडियोज़। यू कैन सी द डिफरेंस इन द क्लैरिटी एंड एवरीथिंग, क्लैरिटी, द कलर्स, द डायनामिक रेंज, सब में आप डिफरेंस देख सकते हो। देयर इज़ अ नोटिसेबल डिफरेंस, आई नो। So that's about the setup, that motovlogging setup that I have right now. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
चैनल ग्रो करेगा, सो आई विल बी इन्वेस्टिंग मोर इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स मोर। तो अभी भी मैंने कुछ कम इन्वेस्ट नहीं किया है, बट स्टिल। तो चलो यार, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। द यूजुअल्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन। एंड अगर आपको DJI Action 5 के बारे में और कुछ जानना है जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, और यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कैमरा और द Insta360, डू पुट देम डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। उसके अलावा अगर आपको इन जनरल ये चैनल के कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल यार, एंड वो बेल आइकन भी दबा दो, तो बहुत हेल्प हो जाती है यार, मोटिवेट्स मी अ लॉट। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, अप अंटिल देन बाय बाय।